multiple charges, the total work done in bringing all those charges from infinity to the current position, infinity to their respective position, that work done is defined as potential energy of the system. Hmm. I think visibility is much better on this class tablet. So just you need to ask your doubts. You can pause me anytime, any topic not clear, you can ask the question. तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं फिर से किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या किया था हमने उसमें जितने भी पेयर्स होंगे हम सारे पेयर्स की एनर्जी का समेशन कर लेंगे potential energy of a system of n point charges system of point charges if there are n number of point charges जितने भी उसके अंदर pairs होंगे we will make all the pairs and the summation of energy of all such pair will be the potential energy of the system, right? Okay, so question हमने एक square का किया था. Next question is calculate the potential energy of 8 point charges of 8 Aishwarya kept at the corners of a cube of side length A. राइट सो अगर टोटल 8 चार्जेस हैं कॉर्नर्स पे और हमें इसके लिए एनर्जी निकालनी है हाउ मच द पोटेंशियल एनर्जी द अदर वर्ड विल बी व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन सो दैट द चार्जेस गो बैक टू इंफिनिटी. जितना इन सिस्टम को भराने में वर्क किया उतनी ही एनर्जी अगर हम बाहर से प्रोवाइड कर दें देन ऑल दीज चार्जेस विल गो बैक अगेन टू इंफिनिटी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम. Okay, fine. So how many pairs will be there? First, we need to figure out how many pairs are there. Then we have to locate those pairs, and then we have to write the energy of each pair and add them algebraically. This is all charge. 28. 28, right? Because there are 8 pairs, 8 charges. So total number of pairs will be 8C2. So first we will count the total number of pairs by using that formula. nC2, which is n minus 1 by 2. So 8 into 7, 56 by 2, that's 28. So there will be 28 pairs of charges possible for these 8 charges. And we have to locate those 28 pairs, write the energy of each pair, and the total summation will be the energy of the system. Sir, what is n here? Total number of charges. Okay, sir. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसे कैलकुलेट करते हैं अगर n चार्जेस हो या n में से कोई भी दो हमें सेलेक्ट करने हो तो nC2. सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स का ये फॉर्मूला हमने लिखा था लास्ट क्लास में. इफ देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस the total number of pairs that can be formed is n minus 1 by 2. So identify where are these 28 pairs. Yes, how many pairs? I mean 28 pairs we have identified. Where are these pairs? We have to locate them. So किसी cube में sides कितनी होती हैं? How many edges are there? How many edges are there? 12. 12. So जब हम सिस्टम की एनर्जी निकाल रहे हैं तो 28 में से 12 तो हो गए along the edge. और किसी भी एक एज पे जो चार्जेस रखे होंगे k q1 q2 by r,
multiply by 12 because such 12 pairs are there, right? Now how many pairs are there? Where are the remaining pairs? 12 is along the edges. 12 is along the edges. Where are the remaining? किसी भी क्यूब में faces कितनी होती हैं? 6. Each face has 2 diagonals, so which means there will be 12 face diagonals. और face diagonal मतलब square के diagonals. So kq square by a root 2, such 12. So 12 are sides, 12 और 4 क्यूब के डायगोनल है ना, और 4 होंगे क्यूब के body diagonals. Plus there will be 4 body diagonals of the cube. Plus, so this will be along the edges. These 12s are along the face diagonal, and 4 will be these body diagonals. एक ऊपर के corner को नीचे के corner से. So plus and body diagonal length is a root 3 multiply by 4. So in any system, the charges are arranged. The charges are arranged, or they are the total work done in bringing these charges from infinity to their position. जितना हमने work किया उतनी energy, उतनी उसके system के अंदर energy होगी. बाहर से इतनी energy provide कर दें, then it will go back to infinity. अगर हम किसी सिस्टम में पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी हम चार्जेस को चेंज कर रहे हैं, we change the position, then we are changing the potential energy, and the minimum amount of work done to change that potential, change the situation, change the system will be equal to change in potential energy. Next concept is work done required to change the configuration of system. Required to change the configuration of system is always equal to change in potential energy. तो हम चैप्टर को उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिससे कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिले और क्वेश्चंस के लिए न्यूमेरिकल किस टाइप के आता है. न्यूमेरिकल अगर हमें किसी भी सपोज स्क्वायर में there are 2 positive and 2 negative charges. So this is used for the solving numerical. Like suppose अगर हम किसी एक स्क्वायर में देखें, there are 2 positive charges and 2 negative charges placed like 2 adjacent is plus q and these 2 are minus q. Now question is calculate the work done in interchanging these 2 charges, positive, negative. So this is positive, negative, positive, negative. Question is calculate the work done in exchanging these 2 charges from each other. Calculate the work done in तो पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी पहले का, फिर दूसरे का, फिर v2 minus v1 है ना. correct u2 minus u1, right. पहले हम इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फाइनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, and then final minus initial. In exchanging the charges as shown. पहले वाले में दोनों पॉजिटिव एक साइड में थे. In the first case, diagonally opposite were negative charges. अभी diagonally opposite में 2 positive और दूसरी तरफ 2 negative. So we have to find out the energy of these 2 separate systems separately, independently, and then final energy minus initial potential energy will be equal to work done. मतलब एग्जांपल ऐसे कुछ भी हो सकता है, any type of system. हम उसमें जो भी चेंज कर रहे हैं, बेसिकली हम चेंज क्या कर रहे हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं. वी आर चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू change in its potential energy.
Initially system में so there are two pairs along the edges which have both charges positive. This is positive. This is also positive because both are negative negative. So ये दो charges positive वाले तो हो गए kq square by a into 2 और ऐसी दो pairs ऐसे होंगे जिनमें एक positive और एक negative. So that will become minus kq square by a times 2. Plus there are two diagonals और diagonals वाले दोनों negative हो जाएंगे because one is positive, one is negative. Kq square by a root 2 multiplied by 2. So these two are gone. Initial potential energy of the system is minus root 2 kq square by a. Clear? No, sir. चलो चलो फिर से करते हैं फिर. ये डायग्राम थोड़ा हौच-पौच हो गया ना? Friends? सर एक्चुअली मैंने वेंसडे वाली क्लास नहीं करी थी और वो रिकॉर्डिंग में थी नहीं, देखा नहीं मैंने, मतलब मिली नहीं वो. अच्छा नहीं मैंने शेयर तो की थी शायद. लेट मी चेक. अभी एक्चुअली वो पर्सन जो ऐप में डालता है वो अभी छुट्टी पे घर गया हुआ है. सो आई एम शेयरिंग द डायरेक्ट लिंक इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स. ओके. ठीक है. नहीं है शायद नहीं है. 26 अप्रैल की क्लास का मैंने भेजा हुआ है. 26 अप्रैल के बाद वी हैड क्लास ऑन 28. शायद 28 का नहीं भेजा मैंने. यस हाँ वेडनेसडे क्लास का नहीं है. ठीक है. आई विल शेयर जस्ट अभी शेयर कर देता हूँ मैं. ठीक है फ्रेंड्स. सो गो बैक एंड रिवाइज दिस फ्रॉम दी notes. Not today मतलब after the class then you can understand this concept. ओके सर. तो हमने रिवाइज कर लिया बट आपको एक बार थोरोली करना पड़ेगा. जितने भी पेयर्स होते हैं किसी भी सिस्टम में हमें उन सारे पेयर्स को आइडेंटिफाई करना होता है एंड वी हैव टू राइट द एनर्जी ऑफ ऑल द पेयर्स. तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और किसी भी एक पेयर की एनर्जी का फॉर्मूला था k q1 q2 by r. फिर मेरे से क्लास तो आप उसी दिन मुझसे लिंक ले लिया करो बिकॉज अभी थोड़ा मैं ज्यादा इन्वॉल्व चल रहा हूँ घर पे भी एंड हेल्थ में भी एंड सो ऑन. So you can ask. I will share the Zoom link directly so that you can revise at least before joining the next class. क्योंकि बाकी चीजें चलती रहेंगी बट पढ़ाई भी रुकनी नहीं चाहिए. This is a temporary condition which should be over soon. Yes, पहले केस में क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ है, दो नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ है. जितने भी पेयर्स हैं हमें उन सारे पेयर्स की एनर्जी लिखनी थी. सो किसी भी एक पेयर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 by r. तो ये प्लस क्यू डिवाइड बाई आर. आर हो गया ए के इक्वल पहले के पेयर के लिए पॉजिटिव. सिमिलरली जो नीचे वाला पेयर है उसमें भी एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव. नेगेटिव इनटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव. सो दैट विल बिकम अगेन kq स्क्वायर बाई ए. वन पॉजिटिव वन नेगेटिव जो इधर वाले दो थे इन दोनों का नेगेटिव हो जाएगा प्लस एवरी पेयर अलोंग द डायगोनल. डायगोनल में एक पॉजिटिव है और दूसरा अपोजिट में नेगेटिव. So this will become negative negative. ये दोनों diagonal cross. This is the initial system energy. Initially system की energy potential energy calculate कर ली हमने. Now we have to find the final potential energy of the system. This is the final state. Final potential energy of the system when we have exchanged those positive and negative charges with each other. मेरी वॉइस अगर कुछ ब्रेक हो या कनेक्टिविटी इशू हो तो बता देना क्योंकि इसका निकला रूट 2 kq स्क्वायर बाय a माइनस 4 kq स्क्वायर बाय.
इसमें जितने भी साइड में पेयर्स होंगे उसमें सारे में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, सो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 4 सच पेयर्स, और जो पेयर्स डायगोनल के लॉन्ग है उसमें दोनों या तो पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम को चेंज करने में, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक ले जाने में जो हम वर्क डन करते हैं, दैट इज इक्वल टू work done in changing this system is equal to change in potential energy, final minus initial. Sir, answer 2 root 2 minus 4 into kq square by a. Work done. So ये आ गया root 2 kq square by a minus 4 kq square by a. This is the initial, final energy, and initial energy was root 2 kq square by a. It was minus root 2 kq square by a, so ये minus minus हो जाएगा plus. So this becomes 2 root 2 minus 4 kq square by a. Please check. This should be the work done. Aryan, यस सर। how are you? क्या सर? कैसे हैं आप? सर सही हूँ सर। अभी all well, recovered? सर उससे तो हो गया, पर कोरोना हो गया सर अभी। कोरोना तो भाई सबको हो रहा है यार, अब तो पता नहीं क्या है। बट ठीक है, कोई नहीं। कोविड मतलब बेटर ना अभी? यस सर। हाँ चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस। बच के रहना भाई सब लोग आजकल, है ना, ये कोविड थोड़ा ज्यादा तेजी से चल रहा है, एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन प्लस मेडिकेशन। कि मैं तो घर में ही देख रहा हूँ, मैम को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर हमें घर में देना पड़ा उन्हें, बट नाउ शी हैज रिकवर्ड थैंकफुली विद द मेडिकेशन। सो थोड़ी लापरवाही नहीं बरतनी है। इनिशियली कुछ भी सिम्टम लगे, गो चेक एंड टेक द मेडिकेशन। ओके, ये समझ में आ गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। हमने जब भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर इस सिस्टम में अगर कुछ भी चेंज करना है, चार्जेस को इधर उधर करना है, या फिर एनी अदर थिंग वी नीड टू चेंज, then what we are changing is actually the configuration of the system. Configuration of system change करने का मतलब हो गया we are changing the potential energy of that system. Changing the potential energy में के लिए हम final energy minus initial energy calculate कर लेंगे. That will become the potential. That will become the minimum amount of work done in changing that particular system or configuration. दो पॉइंट चार्जेस के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था। पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी सिस्टम इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पोजीशन अगेंस्ट देयर इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स क्या था? चार्जेस के बीच का रिपल्सिव फोर्स। अगेंस्ट दैट फोर्स चार्जेस को लाके रखने में जितना वर्क करते हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की होगी या फिर मल्टीपल सिस्टम की होगी। मल्टीपल चार्जेस में जितने भी पेयर्स बन रहे होंगे, हमें उन सारे पेयर्स की एनर्जी का समेशन करना होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी को हम फोर्स से भी रिलेट कर सकते हैं ना, फॉर एनी सिस्टम। दैट वाज इन क्लास 11th वी डिड। इंटरनल फोर्स ऑफ एनी सिस्टम इज माइनस ऑफ du by dr। याद है? कुछ ऐसा किया था हमने वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। इंटरनल फोर्स ऑफ एनी सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी F इज माइनस ऑफ du by dr। वहां से हमने पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है कि सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, डिनोटेड बाय V। इट इज पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए थे। पोटेंशियल क्या? दिस इज स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सपोज हमने ये चार्ज रख दिया किसी स्पेस के किसी पॉइंट पे। जैसे ही चार्ज रखेंगे, दिस चार्ज क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन। इसके चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स व्हाट?
that electric field gives the influence of this charge in its neighborhood, कि इसके चारों तरफ इस चार्ज का कितना इफेक्ट है. उस इफेक्ट को पता करने का एक तरीका क्या था, लेट्स से अगर हमें पॉइंट पी पे पता करना है, पॉइंट पी पे हाउ मच इज द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज क्यू, तो हम वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, वी पुट अ टेस्ट चार्ज, force acting per unit test charge was defined as electric field strength. किसी भी चार्ज के चारों तरफ उसकी रीजन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, the strength of electric field is denoted as force acting per unit test charge kept at that point. तो ये उस चार्ज के इन्फ्लुएंस को उसके उसकी विसिनिटी में, उसके नेबरहुड में रिप्रेजेंट करने का एक वेक्टर मेथड है. दूसरा तरीका क्या है, किसी भी चार्ज के रीजन में, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट के इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है, how much work is needed to reach or needed to go to that point starting from infinity by a unit charge. किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, that work is also another property associated with that point. पोटेंशियल किसका है, इस पॉइंट P का, किसकी वजह से, because of the charge Q, because Q की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी फील्ड में उसका पोटेंशियल है. So potential is another way of representing the property of a point inside any electric field. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक पॉइंट पर हम दो तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं. पहला, वहां पर एक यूनिट चार्ज रखे, how much force acts on that unit charge is defined as electric field. How much work is needed to do per unit charge to reach that point is defined as electric potential. तो जैसे ना स्टार्टिंग में हमने एक एनालॉजी देखी थी, अगर ये चार्ज को हम एक डॉन समझ लें तो इसका ये इलाका है, इसके पास जाके खड़े हो गए तो कितना फोर्स लगता है, कितनी मार पड़ती है, दैट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचते हो, दैट इज द पोटेंशियल. सो दे बोथ आर काइंड ऑफ लिंक्ड अप, they both are related to each other. Potential is a scalar way of representing the influence of a charge in its region, and electric field is the vector method of representing the strength or influence of a charge in its neighborhood, in its electric field. ये भावना समझ गए पोटेंशियल है क्या? Understood the एक बार concept of फिर से बस ब्रीफ पॉइंट्स आता है. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने इसलिए यहाँ पर जिक्र किया बिकॉज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज की होती है, किसी पॉइंट पे ड्यू टू अ चार्ज. ये चार्ज क्यों रखा हमने, क्यों ने अपने चारों तरफ अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर ली, उस फील्ड में हर जगह पर उसकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी. स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट, हाउ डू वी डिफाइन, वहां पर एक यूनिट चार्ज रखो, वी पुट अ यूनिट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज रखने पे फोर्स लगता है F. The force acting on a unit charge is defined as electric field strength at point P, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं. चार्ज के इन्फ्लुएंस को उसके सराउंडिंग रीजन में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज एट पॉइंट P. Another method of representing the strength of the charge or the influence of that charge, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है पर यूनिट चार्ज. The work done in bringing a unit charge from infinity to that point. उस पॉइंट तक पहुंचने में जितना हमें वर्क करना होता है, that work done is defined as electric potential at that point. Right? Yes sir. Potential क्या है, उस पॉइंट तक पहुंचने में कितना वर्क डन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज a concept which we have already done in detail. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर मेथड था उस पॉइंट की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने का, वहां पे कितना फोर्स फील होता है फॉर यूनिट चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वहां तक पहुंचने के लिए कितना हमें वर्क करना होता है पर यूनिट चार्ज. सो the work done, the definition of potential is the work done in bringing a unit charge, the work done in bringing a unit charge from infinity to a point. From infinity to a point inside
इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विदाउट एन एक्सेलरेशन, विदाउट एन एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन के साथ आएंगे तो पहली बात वहां रुकेंगे नहीं, and then there will be some kinetic energy also involved. Inside electric field without an acceleration is defined as electric potential at that point, is defined as electric potential at that point. Why we started at infinity? Because again at infinity we assume there is no interaction, no force, no potential energy, so potential is also assumed at zero. Potential energy at, sorry, जैसे हमने potential energy zero लिखी थी, वैसे यहाँ पर हम बात करेंगे electric potential at infinity is also assumed as zero. Electric potential at infinity is assumed to be zero. ये assumption valid होगा again for a finite size charges like a point charge or a disk or a ring. But अगर charge खुद infinity तक है like infinite line or infinite disk, infinite sheet, then this assumption will again not be valid. फिर हमें उसके लिए किसी और point को potential का reference लेना पड़ेगा. So if you define this potential क्या था? So potential actual में है, potential difference is the work done bringing per unit charge from infinity. So अगर हम suppose Q naught charge को लेके आते हैं and W is the work that is required to be done. This is potential को हमने infinity पे zero लिया, या otherwise we should write it as difference in potential at current position minus infinity. Actual definition तो ये हुई, infinity का potential suppose V infinity और current position का potential V. Here it is V and we started at infinity, then infinity potential is assuming V infinity to be zero, potential हम define कर सकते हैं. V infinity to be zero, we can define V as work done per unit charge. और ये जो work done था, this is same as the potential energy by the definition of potential energy divided by ये Q naught. work done upon unit charge कैसा है? Definition है ये बेटा, the work done in bringing a unit charge. Q naught charge को लाने में work done is W. By unitary method, what is the work done bringing a 1 coulomb charge? W by Q naught. Right? Q naught Yes. charge को लाने में work is W, so 1 coulomb charge के लिए work will be W by Q naught by using the unitary method. इसी definition में हमने formula apply कर दिया, work done is same as potential energy. So ये हमें formula मिल गया, electric potential due to a point charge at a distance r from it. Electric potential due to a point charge. जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया, जो भी वर्क डन होगा उस पर्टिकुलर सिस्टम में उसको हम यूज करके वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r from it. Since work done is a scalar quantity, so potential will also be a scalar quantity. Scalar quantity का मतलब positive charge के लिए potential is positive, negative charge के लिए potential will be negative, and the unit will be SI unit is joule per coulomb. SI unit will be joule per coulomb और उसी को हम बोलते हैं volt. Potential का use क्या है and how do we use that potential, that we'll see in the next chapter also. कि potential से हम current की direction decide कर सकते हैं, potential से हम potential energy decide कर सकते हैं, and there are a few conceptual question also in this chapter. But let's
फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल का लॉजिक क्या है. पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी बताता है. उस पॉइंट तक पहुंचने में हमें ज्यादा मेहनत की है या कम मेहनत की है. व्हाट डज दैट सिग्निफाई? जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है वो पॉइंट चार्ज की ज्यादा पास होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, विच मीन्स हमें वहां तक पहुंचने में ज्यादा वर्क करना है. सो हायर पोटेंशियल मीन्स हायर पोटेंशियल एनर्जी. उस पॉइंट तक जब हम पहुंच जाएंगे तो वहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. Potential can also be defined as by the same logic, क्योंकि work done is same as potential energy. Work done is same as potential energy. So electric potential अगर किसी पॉइंट का है V, electric potential at any point is V. सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा. हाँ बेटा, ये तो हमने सिर्फ क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज के लिए इस पोटेंशियल की डेफिनेशन अप्लाई करके उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया. पॉइंट चार्ज है Q, उससे R डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं as KQ by R. There is no direction involved. It is just a number, a scalar quantity because it is work done. ओके सर. पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि वहां तक पहुंचने में मेहनत करनी पड़ेगी पॉजिटिव के अगेंस्ट. नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव मींस वर्क डन हमने नहीं किया और नेगेटिव चार्ज खुद ही अट्रैक्ट होके अपने आप आ जाएगा. यूनिट जूल पर कूलॉम, एंड जूल पर कूलॉम को ही हम लिखते हैं वोल्ट. नाउ द पॉइंट इज कि अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो उससे फायदा क्या है. अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज लेट्स से V, किस चार्ज की वजह से ये नहीं पता. देयर आर मल्टीपल चार्जेस, सारे चार्जेस का जो रिजल्टेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल है दैट इज V. अगर हम इस पॉइंट पर चार्ज एक रख देते हैं Q, then the potential energy of the charge Q kept at that point will be how much? Potential energy of charge capital Q kept at that point. यूनिट चार्ज को लाने में वर्क होता है V. Q चार्ज को लाने में वर्क कितना होगा? QV. So उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिंपली Q into V. दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पोटेंशियल. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर है E और वहां पे हमने चार्ज रख दिया Q, सो उस पर फोर्स कितना हो जाता है? QE. लाइकवाइज अगर हमें किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल पता है, हम उस पॉइंट पे रखने वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं. पोटेंशियल पता होने से पोटेंशियल एनर्जी पता होती है. पोटेंशियल एनर्जी पता होने से हमें सिस्टम का चेंज पता होता है. चेंज का मतलब किस डायरेक्शन में चार्जेस विल बी फ्लोइंग, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द चार्जेस विल फ्लो. ये पॉइंट समझ आया? ये जो लिखा है उस बॉक्स के अंदर, किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल V है, इसका मतलब यूनिट चार्ज को वहां तक लाने में वर्क करना पड़ेगा V का. Q चार्ज को लाके रख दिया तो Q चार्ज को लाने में वर्क इज QV, राइट? यस सर. यस सर. U is equal to QV लिखा है ना आपने? हाँ बेटा, U is equal to QV लिखा है ना आपने? हाँ, U is potential energy. Potential energy of that charge will become Q into V, क्योंकि Q चार्ज को लेके आए, V is the charge work done bringing a unit charge. पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. पोटेंशियल से हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पता कर सकते हैं. जैसे फॉर द कंसेप्चुअल, दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी. ऐसे कुछ क्वेश्चन है. लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट A एंड पॉइंट B. किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है? जब हम वो सिस्टम के अगेंस्ट वर्क करते हैं. जैसे अगर हम चार्ज को A से B तक लेके जाते हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज को, जो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, दैट इंटरनल फोर्स वांट्स द चार्ज टू बी रिपेल्ड. अगर हमने कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एनी पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट एट पॉइंट A. पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है. सो बिकॉज ऑफ द सिस्टम इंटरनल फोर्स, द पॉजिटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू गो फ्रॉम A to B. अगर सिस्टम का फोर्स वर्क करता है, सिस्टम का इंटरनल फोर्स की मर्जी से वर्क होता है, then potential energy always decreases.
जब सिस्टम के इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है, work is done against the internal force, then potential energy increases. ये कुछ conceptual questions है from the books and from the previous year, so I am just explaining the concept around those questions. मतलब ये theory में कोई concept नहीं मिलेगा आपको book में, these are just applied in the question solving. जैसे ये एक चार्ज है, ये NCERT में भी question है, SL में भी question है. अगर हम किसी सिस्टम के वर्क इज डन अगेंस्ट द internal force of the system, then potential energy increases. जैसे ग्रेविटी का एग्जांपल लिया था हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी नीचे आना चाहती है, हम पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे, तो हमने इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया. वर्क इज डन अगेंस्ट इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, then potential energy increases. Right? And if work is done by the internal force of the system, जो सिस्टम चाहता है अगर वही हो रहा है, if work is done by the internal force of the system, then potential energy decreases. So ये ना एक कॉन्सेप्ट है, हम इस कॉन्सेप्ट को अभी इस एग्जांपल से समझ रहे हैं. लेट्स से देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इन द NCERT and other books also. If a positive charge is taken from B to A, its potential energy increases or decreases? आपको आंसर करना है. If positive charge is taken increases, B increases. taken from B to A, सिस्टम क्या चाहता है, इसको रिपेल करना, बिकॉज दीज आर बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, और हम उसके रिपल्सिव इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं. सो इफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम B to A, द पोटेंशियल एनर्जी increases. Potential energy किसकी, of the system, increases. But suppose if there is a negative charge taken from B to A, if negative charge is taken from B to A, अब negative charge को वो system खुद attract करना चाहता है B to A, that is the work done by the internal force. Negative charge is going because of the work done by internal force, then potential energy will decrease. Negative charge is taken from B to A, its potential energy decreases. लॉजिक क्लियर ना? चार्जेस रिपेल हो रहे हैं, रिपल्शन के अगेंस्ट अगर हम जबरदस्ती लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. इफ दिस वुड हैव बीन अ नेगेटिव चार्ज खुद ही चला जाएगा अपने आप, बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्स ओनली. देन वर्क इज डन बाय द इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स वर्क करता है अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है. इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है, देन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड. किसी को डाउट इसमें? हिस्ट्री, इज दैट क्लियर? दृष्टि, जी सर. बेटा समझ आया एग्जांपल? हाँ सर. अच्छा, आपके स्कूल में टेस्ट कब है इस चैप्टर का? सर अभी एक चैप्टर 1 का बोला था आपने, शायद कुछ होने वाला था, कब था वो? नहीं सर, वो मिड टर्म्स कैंसिल हो गए थे हमारे, तो पोस्टपोन हो गया, मतलब कैंसिल नहीं, बट अब जून में होगा. अब जून में होगा. जून एंड में होगा. अभी तो सब जगह पे केवल सर्वाइवल की जद्दोजहद है. सो आई डोंट थिंक कि कोई एग्जाम होने वाले हैं, बट हाँ, यू जस्ट कैरी ऑन योर स्टडी. ये 1-2 महीने बस सब लोग सरवाइव करने के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑल द सिस्टम्स एंड ऑल दी. सो ठीक है, घर पे रहे, सेफ रहे, पढ़ाई करते रहे. ऑनलाइन इज द बेस्ट थिंग. सर वो जो मैं मटेरियल कह रहा था लाने की, अब 1 हफ्ते में तो पॉसिबल नहीं लग रहा. तो सर लॉकडाउन हो गया ना 1 वीक का. सर कोरियर
करा सकते हैं क्या? अभी शायद कोरियर सर्विसेज चल रहे हैं। ये अभी तो शायद 1 वीक का लॉकडाउन हो गया ना, मुझे ऑफिस भी जाना था, मैं आज नहीं जा पाया अच्छा इसी। अच्छा, उधर होंगी books, ठीक है फिर। Probably this for 1 week and my society is in containment zone क्योंकि यहाँ more than 150 केसेस हो चुके हैं। तो ओके मतलब सब जगह पे ऑलमोस्ट यही हाल है जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। यस तो ठीक है, कोई नहीं, आई विल most probably coming weekend तो लॉकडाउन है मंडे, नेक्स्ट मंडे। सर अब लॉकडाउन के बाद जब सेफ हो जाए आपके उसमें, फिर आप कर सकते हो कोरियर, फिर तो हाँ बेटा, कोरियर मैं करवा दूंगा, ठीक है, ओके, इट कैन बी डन बट दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। व्हाट हैपेंस इन दिस केस, सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज को हम पी क्यू से पी लेके जाते हैं, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम क्यू टू पी, potential energy increases or decreases? Aryan, डिक्रीजेस। if positive charge is taken from Q to P, सॉरी P to Q कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं पिछले से। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को P से Q लेके जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज हो। पॉजिटिव चार्ज P से Q तक जाना नहीं चाहता है, वो वापस आना चाहता है, दिस इज द इंटरनल फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव, हम उसको अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। भावनाएं शायद आप समझ गए हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम increases. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली विल डिक्रीज बिकॉज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। हम इस चार्ज को अगर रिलीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का कम होती है, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। डी है, सपोज इफ नेगेटिव चार्ज, if negative charge is taken from P to Q, so when डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी, राइट, ओके। नेगेटिव चार्ज अगर जा रहा है तो वो इंटरनल फोर्स के डायरेक्शन में ही जा रहा है, मतलब कि वो रिपेल हो रहा है, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। सुशांत, सुशांत, रिप्लाई तो कर दो यार। यस सर। समझ आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा। अरे पक्का? एनसीईआरटी आपने पढ़ी फर्स्ट चैप्टर की? पूरी तो नहीं पढ़ी। हाँ, पूरी नहीं पढ़ी सर। शुरू कर दिए, खोल दिए, मतलब स्टार्ट हो गया है? हाँ। अच्छा, तो इसकी सारी एक्सरसाइज करके और आप मुझे सबमिट कर देना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस, ये करके आप सबमिट कर देना। ओके, सो ये हम कुछ समझ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम सिस्टम को बनाने में जितना वर्क करते हैं, the whole work done in bringing the charges from infinity to that position, that is potential energy. अब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए तो भूल जाओ, अगर सिर्फ एक चार्ज हो, उस चार्ज के चारों तरफ किसी पॉइंट अगर हम लाना चाहते हैं किसी चार्ज को, इफ यू वांट टू ब्रिंग दैट चार्ज, तो उस चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। जैसे P हो गया और Q, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल है, सो वी हैव टू डू द डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना वर्क डन हमें यूनिट चार्ज को लाने में करना है, दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W by Q। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, और फिर हमने पोटेंशियल के हेल्प से किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज बहुत सारे चार्जेस हों और हमें उनका पोटेंशियल निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, electric potential due to a system of charges is scalar sum or algebraic sum of potential due to all the charges, is algebraic sum of potential due to all the charges। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम यहाँ पर क्यों algebraic sum करेंगे।
अलजेब्रिक सम यानी स्केलर क्वांटिटीज के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होता है, जैसे यहाँ पर हम पोटेंशियल के लिए कर रहे हैं. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Right? In a system of n number of charges, the total potential is always suppose q1, this is minus q2, q3. और हमें पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है. पॉइंट P की डिस्टेंस q1 से है r1, q2 से है r2 और q3 से है r3. So potential of this point P is k q1 by r1 minus k q2 by r2 plus k q3 by r3. It is not direction dependent, just a number, so we will add accordingly. Electric potential at point P is just the algebraic summation. अगर कुछ charges positive है, some charges are negative, so total potential may become zero, and total potential zero का मतलब हो गया उस point तक किसी charge को लाने में net work done will be zero. Net work done का मतलब हो गया उसका initially हमें work करना पड़े, फिर system work करे, and the total work done will become zero. Calculate the potential at point O. Calculate the electric potential at point O. O is the center of a square where 4 charges are kept at the corner. Q, 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 and Q. 4 charges are kept at the corner. This is the side length A. हमें point O पे calculate करना है the electric potential. So again, all charges are positive, so all charges will be like having the positive potential. सबके लिए distance भी same होगी r. Electric potential at point O will be the algebraic summation of potential due to all charges. So it will become k q by r multiplied by 4. Multiply by 4. Yes, sir. Or r is half of the diagonal. R is half of the diagonal. So it becomes a by root 2. So 4 root 2 kq by a. What about electric field at A? At O? O पे electric field कितनी है? Electric field zero. Right? So it is not necessary कि जहाँ पे electric field zero है वहाँ पे potential zero होगा. Electric field can be zero, but potential can be non-zero. Electric field at point A is zero. So at point O, E is zero, but V is non-zero. ऐसा हो सकता है कि potential zero but electric field non-zero. Is it possible? देखते हैं. Next example. Is सर it एक बार possible? बैक करना, ये कुछ डाउट है कैलकुलेशन में. बोलो. सर 4k³ by r कैसे आया? क्योंकि किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल का kq by r. और फिर √2 मतलब आपने कैसे लगाया? नहीं वो तो हाफ r क्या हुआ? R is the half of the diagonal ना. यस सर. Length of diagonal is a root 2 a divided by by 2. √2. R को a by root 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया. R is a by root 2, so that it becomes 4 root 2 kq by a. Right? यस सर. अंडरस्टूड. Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन ये था, इसमें आपको कैलकुलेट करना है अगेन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल.
Calculate the electric field and potential at point O. Same square or side length A. Calculate the field and potential. Sir, potential 0. So potential 0, electric field. Yes, what is the potential at point O? So 0 है. 0 है. Electric field? So वो pointing right के direction में So it's non-zero basically. non-zero. पर calculate करना पड़ेगा ना. Yes, it's non-zero. So at this point O, now potential is 0, but electric field is non-zero. तो ऐसा भी हो सकता है कि electric field non-zero. Potential at point O is दो चार्जेस का पॉजिटिव, दो का नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम इट, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स इट. सो 2e इधर, similarly 2e. So the net electric field is 2 root 2e, which is not zero. Electric field is not zero. So it is possible that in this point, electric field at point O is non-zero. पिछले वाले में क्या था? E zero, V non-zero. In this case, E is non-zero, but V is zero. पर हमें calculate करना है ना electric field तो ये हमें कैलकुलेट करना था पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले इस तरह के क्वेश्चंस में. दिस विल बी हाउ मच? 2 root 2 times E, and E is KQ by R square. फिर R square को वैसे R को हम A by root 2 लिख देंगे फिर से. R is A by root 2 square. So 4 root 2. 4 root 2 KQ by A square towards right. This we have already done in the electric field. अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. Is it possible to have V0, E non-zero, E0, P non-zero, something like so? Correct. Electric potential due to a number of charges will be just the algebraic summation of potential due to each charge. Electric field के लिए vector summation करना होता है. Potential के लिए just we need to add. Okay, fine. So अब हम देख लेते हैं electric field और potential, because field था force per unit charge and potential was work done per unit charge. दोनों में कुछ ना कुछ relation होना चाहिए. Relation between electric field and potential. Okay, so let's say from these 2 point, अगर हम इन दोनों points के बीच में charges को ले जाते हैं, electric field is force acting per unit charge. Potential था किसी एक point तक लाने के लिए work done, और potential difference between any 2 point. Potential difference will be
बिकॉज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट कर पाएंगे, ना कि पोटेंशियल से. एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन. व्हाई? because the absolute potential energy, absolute configuration of anything is not defined. Infinity को हम hypothetically assume कर लेते हैं. Suppose from point A and point B, this is 2 point. These are the 2 points in some external electric field, और हमें इनके बीच का potential difference निकालना है. So if we have a charge Q and that charge is taken from A to B, Q charge को A से B तक ले जाने में अगर work करना पड़ता है W, potential difference is the work done in moving a unit charge from one point to another. तो उसमें infinity का कोई रोल नहीं है. It does not even depend upon the value of infinity. The work done in moving a unit charge from one point to another without an acceleration. सर विदाउट एक्सेलरेशन क्या होता है वैसे? विदाउट एक्सेलेरेशन होगा तभी वो जाके बी पे रुकेगा. अगर एक्सेलेरेशन आ गया तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आएगी तो पॉइंट बी पे रुकेगा नहीं. एंड देन इट विल एक्वायर द काइनेटिक एनर्जी आल्सो. फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रह जाएगा. अभी हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो सब चार्जेस एट रेस्ट के ए पे रेस्ट में था, और धीरे धीरे सो स्लो हम इसको लेके गए दैट इट वाज ऑलमोस्ट एट एवरी पॉइंट इट वाज एट रेस्ट ओनली. Work done in moving a unit charge from one point to another without an acceleration. हमें सिर्फ इतना ही फोर्स लगाना है जितना उसके अंदर फोर्स लगा था. उससे ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, and the particle will not stop at point B. Another without an acceleration is defined as potential difference. So like here A to B, if you are going and work done is W, then potential difference will be W by Q. A से B तक जा रहे हैं, so final point का potential minus initial point potential, this will be equal to work done per unit charge. अब A और B का potential हम अलग उस formula से भी निकाल सकते हैं. If this is because of the different point charges, so we'll calculate the potential, net potential of point A, net potential of point B, and then we can calculate the VB minus VA. So from this formula, we also get the work done in moving a charge. If suppose we have to move a charge from one point to another, the work done in moving a charge from one point to another is Q delta V. So हम उन दोनों पॉइंट का अलग से पोटेंशियल निकाल लें. पॉइंट ए का पोटेंशियल बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q from A to B will be Q times VB minus VA. Right? So potential difference को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं. कैसे? A से B तक ले जाने में जो ये वर्क डन हो रहा है दैट इज Q टाइम्स डेल्टा V. तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस था. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब हम किसी सिस्टम के इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं. This is integration of F internal dot dr. Delta U change in potential energy. One more thing. यहाँ पे जो अभी देखते हैं charge into potential, ये क्या आ गया? Charge into potential will become potential energy at point B minus potential energy at point A. So जब भी हम किसी सिस्टम में कुछ changes कर रहे हैं या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, then work done is also equal to change in potential energy, which is also clear. So all the formulas are same only the interpretation is different. हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज कर रहे हैं चार्ज को. We are changing its position, so basically we are changing its potential energy. Final energy minus initial energy will be the work done.
उसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका पोटेंशियल के टर्म्स में, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब ए से बी तक लेके जाने में पोटेंशियल एनर्जी सपोज हुई डेल्टा यू, किसी भी सिस्टम की सर एक पोटेंशियल सेकंड में एनर्जी, स्पीच है चल रहा है क्लास। Yes, sir. Thank you, sir. so when we change the position of the system or when we change the potential energy change is always equal to work done against the internal force of the system. अभी इसको अगर हम दोनों तरफ यूनिट चार्ज से डिवाइड कर लेते हैं, फोर्स F by unit charge dot dr, क्या हुआ फिर ये potential energy per unit charge become potential difference and force per unit charge हो गया E dot dr. This is a relation for potential difference. जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में potential difference कैलकुलेट करना है, potential difference between any two point will be equal to minus integration. अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो हमने integrate this from A to B, जो भी R1 to R2 whatever the distance, potential difference is minus of E dot dr. अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों है? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, like suppose this is for a positive charge, electric field in the direction A to B, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो अगर हम डेल्टा V कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, which means final point is electric field is always from high potential to low potential. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटीग्रेट करें, यानी इनिशियल पोजीशन है हमारा A एंड फाइनल पॉइंट इज B, सो फाइनल का पोटेंशियल हमेशा इनिशियल से कम होगा एंड लो माइनस हाई it will always come out negative. So here negative sign implies that potential always decreases in the direction of electric field. In this minus sign indicates, negative sign indicates that implies that potential always decreases in the direction of electric field. ये समझ आ गया ना डेरिवेशन क्या क्या है? Yes, sir. Derivation is clear. Yes, sir. Yes, sir. Divided by Q naught on both the sides. Potential energy मतलब work done per unit charge is potential difference और force per unit charge is electric field. अब अगर potential है, अगर हमें exactly potential चाहिए ना कि potential difference, then we have to start from infinity for any point charge. Electric potential at any point, so it has to be started exactly from infinity. So because फिर delta V में infinity का potential हो जाएगा 0, V minus V infinity, it will be minus of infinity to R E dot dr. Infinity potential अगर हम 0 assume कर लेते हैं, under that assumption, ये assumption है, it is not necessarily 0, then minus infinity to R E dot dr. अभी इसमें delta sign ऐड किया, जो potential में पहले delta लगा हुआ था, this is potential at any point, assuming electric potential at infinity to be 0. बेटा दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? ये R1 से R2 था, इसको हम A से B की जगह पे R1 to R2 कर लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. और जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब वी हैव टू स्टार्ट एग्जैक्टली फ्रॉम इंफिनिटी बिकॉज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम infinity to that position is defined as potential, is defined as the potential. So हमने अभी आज potential समझा क्या होता है. Potential is the property of some point in the electric field
उस पॉइंट तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी है, कितना वर्क डन करना है. विद द हेल्प ऑफ दैट पोटेंशियल we can calculate work done, we can calculate potential energy, we can predict the direction of the flow of charges, we can predict the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होती है. अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें पोटेंशियल पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. अब ये जो E डॉट dr है इसमें E has to be a function of R. अगर electric field is not a function of R, if electric field is in 3D, like if electric field has all the 3 component, थोड़ा मेरे इसका जो ऑर्डर है वो बुक के ऑर्डर से डिफरेंट है बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक द कॉन्सेप्ट टुगेदर, जो कि क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे आपको. DPP I will be able to give next class only for this particular chapter because it is in the laptop and laptop is in the office. Try to bring those books at home. Electric field is given as E is equal to EXI plus EYJ plus EZK in space. Because earlier the lockdown was till weekend and then yesterday evening only the news came that it has been for the whole week, extended for the week. ओके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है EXI, EYJ और EZK और फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 positions x1, y1, z1 and x2, y2, z2. So ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था डेल्टा V इज माइनस R1 to R2 E dot dr. इसी को हम एक 3D वाले कंपोनेंट में चेंज कर लेंगे. dr is the 3-dimensional small displacement vector. E is EXI plus EYJ plus EZK. dr will become DXI plus DYJ plus DZK. So this potential difference will be minus, integrate करेंगे x1 y1 z1 to x2 y2 z2 EX dx plus EY dy plus EZ dz. इसमें क्या किया, E की और D की दोनों की वैल्यू पुट कर दी. E की वैल्यू है EXI plus EYJ plus EZK dot DXI plus DYJ plus DZK. EX dx plus EY dy plus EZ dz ये ऐड हो जाएंगे. So x1 y1 z1 plus x2 y2 z2 तक हम इसको इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर देंगे. दिस विल बिकम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स. सो हमारे पास पोटेंशियल कैलकुलेट करने के 2 मेथड हो गए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में करो या फिर KQ by R. KQ by R was the potential due to a unit charge. If E is known as a function of R, from E dot dr कर लेंगे इंटीग्रेट. जैसे किसी पॉइंट चार्ज के लिए या किसी स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, अगर हमें स्पेस में किसी पॉइंट में एक्स वाई जेड के फंक्शन की फॉर्म में पता है, then we will integrate Ex with respect to dx, Ey with respect to dy and Ez with respect to dz. So potential का relation क्या आया, potential difference is minus of integration of E dot dr for 3-dimensional, उसी को Ex dx में चेंज कर दिया. अगर सपोज ये केवल एक ही डायरेक्शन में या केवल एक ही कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, लेट्स से इट इज ओनली इन x, तो ये आ जाएगा E into dx. और इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में एरिया अंडर इट. सो एरिया अंडर E वर्सेस R ग्राफ, उसका माइनस है, दैट विल आल्सो गिव द पोटेंशियल डिफरेंस. अलग अलग तरीकों से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. वन मेथड इज यूजिंग द ग्राफ. इफ वी नो
electric field versus position graph. Using the area bounded by the graph, we can calculate the potential difference. Right? सर ये एक तीनों बार एक ही फॉर्मूलेज हैं, बस अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आर के टर्म्स में पता है, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल आ जाएगा एक पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर के टर्म्स में ना बताओ कि एक्स वाई जेड कंपोनेंट में बताओ, तो ई एक्स को डी एक्स में इंटीग्रेट करेंगे, ई वाई को डी वाई में, ई जेड को डी जेड में, देन वी अप्लाई लिमिट फ्रॉम x1 y1 z1 टू x2 y2 z2 टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा तरीका ये था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पता है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एरिया इन द ग्राफ, potential difference will be minus, potential difference will be minus times area under it. Right? कुछ पूछ रहा था अमन? यस बताइए। मैं कह रहा था बस एक बार पिछली स्लाइड पे चल जाओ। पिछले साइड पे क्या कह रहे हो? सब पिछली स्लाइड पे चल जाओ, बस एक चीज नोट करो। Yes, thank you. Okay. राइट, सो थोड़ा मेरा ऑर्डर डिफरेंट होगा फ्रॉम द बुक। इन पर एनसीईआरटी में तो सारी चीजें हैं भी नहीं इस तरीके से, सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज दिस नोट्स एज पर दिस सीक्वेंस ओनली, सो दैट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अप्लाई इट। सभी हम पोटेंशियल के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे फॉर द रिंग, फॉर द डिस्क, फॉर होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर नेक्स्ट क्लास। सो इसमें पहले एग्जांपल देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है व्हेन वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड in a space at some certain point. So let's say electric field is if electric field at any point x, y, z is given as E is equal to minus of 2x square minus of 3x square I cap plus 4y j cap plus 6 minus सर वो 3x square I cap plus 4y j cap plus 6z square। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं सर, वो 3x स्क्वायर पूछ रहा था। x square plus 4y j cap plus 6z cube k cap. Find the potential difference between find potential difference between 1 1 1 and 2 2 2. So potential difference का formula होता है minus times E dot dr, and that becomes ex dx plus ey dy plus ez dz, and this has to be integrated from 1 1 1 to 2 2 2. ये यहाँ पर माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं एक साथ अलग अलग कर लिया इसको। 3x स्क्वायर dx प्लस 4y dy प्लस 6z cube dz। Limit from
इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट करके हम लिमिट लगा लेंगे 1 1 1 2 तो 3 x स्क्वायर इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाई 3 प्लस 4 y इंटीग्रेशन इज y स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 z क्यूब इंटीग्रेशन इज z4 बाई 4 limit from 1 1 1 to 2 2 2. So this 3 3 gone, this becomes 2 and this becomes 3 by 2. So I'll multiply the limit x cube plus 2y square plus 3 by 2 z to the power 4. X cube plus 2y square plus 3 by 2 z to the power 4. और इसमें लिमिट अप्लाई करनी है 1 1 1 से 2 2 2. Apply 2, so 8 plus 8 plus 24 minus 1 plus 2 plus 3 by 2. सही है, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार. 40 minus 9 by 2 which is 71 by 2. 71 by 2 volt is the potential difference between these 2 points in this electric field region. Right? अंडरस्टूड ना क्या क्या ये सिंपल एग्जांपल था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन गिवन था, इसलिए हमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ex dx plus ey dy plus ez dz. अगर r का फंक्शन होता तो सिंपली e को dr में इंटीग्रेट कर लेते. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता तो हम उसको एरिया से कैलकुलेट कर लेते. ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल सी द पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वायर, शीट एक्सेट्रा. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स. एक तो हम उसको ई के डी इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, या फिर हम उसको एक छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करके एक पॉइंट चार्ज का निकालेंगे के क्यू बाई आर एंड देन वी इंटीग्रेट फॉर द इंटायर चार्ज. राइट, ठीक है. सो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं आपको और ये पूरा पोर्शन रिवाइज करना है. Don't find the same sequence in the book. You may not be able to find, but at the end, जैसे हमने first chapter में थोड़ा sequence को change किया था, so similarly I'll be changing the sequence in this chapter also. And DPP from the next class onwards, we'll be starting out these chapters. आंसर क्या है आपका? 71 by 2 आया था मेरा, तो check कर लो. Calculation I don't know, should be correct. 71 by 2 ना? Yes, sir. Okay, and I can share these notes also now because it's in the PDF format. I can share, so I'll be sharing these notes also for your reference. Okay. Okay. Then. Okay. Thank you. That's it for today.